I will continue the same topic, that is unit number 3, current electricity for class 12th. Okay, so here are the topic that I will cover today. These are very interesting topic and you will enjoy today's topic. Here before this, the previous topic that I have discussed in my last video, that were current, electric current, and the conduction of electric current in solid, liquid and gaseous medium, and what are the differences between them, and afterward drift velocity, diffusion velocity, mechanism of electric current through the conductor, and relation between the current and drift velocity. So I hope that you have viewed that video and you have covered that topic. So today let's start with this new topic, that is mobility. So here mobility, आपने ये नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये वर्ड सुना होगा, मोबिलिटी. मोबिलिटी मीन्स व्हाट? द स्टेट ऑफ मोशन को ही हम कोरस्पॉन्ड कर सकते हैं मोबिलिटी से. सम बॉडीज आर मूवेबल, सम बॉडीज आर इमूवेबल. ओके, सो मैकेनिज्म के थ्रू भी हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मोबिलिटी इज द टर्म लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉन मोशन और plus ion motion. Okay, and as I told in my previous class that plus ion does not move in a conductor body, they are bound in a lattice. So that is why we are only considering here the mobility of electron. So what is mobility? This is a new physical quantity and we can define it as mobility is represented by the drift velocity of electron per unit electric field. Okay, the drift velocity of electron, because I am talking about only electron motion inside the conductor body. Electron and positive charges are flowing through the semiconductor body. Okay, that in semiconductor the number density, the charge density is because of electron as well as the positive ion that are called hole. So that we will discuss later in semiconductor physics. But here in this topic we are considering only the motion of electron, because in conductor body only the electronic charge can flow, can move. So mobility is linked with the motion of the body. You can see here the formula, the drift velocity of electron. Drift velocity, that means what? We are considering the case where the conductor is attached with a battery or a cell. Here this one is key, this one is battery, positive terminal, negative terminal, and here is a conductor body. Conductor means what? जो वायर आपके connecting wires, जितने भी appliances हैं, जितने भी wires हैं, connecting wires, these are all comes under the category of conductor. Okay, so here because our body is also a conductor of electricity, that you know. So here the conductor means what? Through which the current can flow. Here this one is a conductor body and this one is a battery. So when we apply the battery, as I have discussed in the drift and diffusion velocity case, if we are applying the battery, then electron move. Here the direction of current is this one, and electrons are moving here in opposite direction to the current. That means indirectly they are moving opposite to the electric field, and this one is the basic mechanism that I have discussed in chapter number 1, unit number 1. So these are the electrons which are moving opposite to the electric field direction. This is electric field direction. Okay, so mobility is linked with the two terms, drift velocity and electric field. It is the ratio of the two. Okay, so drift velocity per unit electric field is called mobility. Means electrons speed. If electron speed, drift speed is more inside a conductor body, then the mobility of electron is more. Obviously the speed is more, that means motion is fast. So mobility is linked with the motion of electron inside a conductor body. So we can find out, this one is the formula. I hope it is clear to you. It is linked with only the physical structure here, that we are applying some electrical source, that is battery, and then the electrons are moving with drift velocity, drift speed. So mobility is equal to drift speed और velocity. mod मैंने लगा दिया, that means what? कि हम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी mod है, that means we are only taking the magnitude. So here the mobility
is corresponding to magnitude of drift speed per unit applied field. स्मॉलर फील्ड में अगर मोबिलिटी फास्ट हो जाती है तो मोबिलिटी मीन्स स्पीड फास्ट हो जाती है तो मोबिलिटी हाई है. तो मोबिलिटी हाई मीन्स क्या है कि दैट सिल्वर, अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मोबिलिटी ज़्यादा होती होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली फ्लो कर पा रहे हैं सिल्वर स्ट्रक्चर की बेसिस पर. सो दैट इज़ वाई सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो हियर मोबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. Okay, and second thing we can identify the unit of mobility. Drift speed unit is what? Meter per second. And electric field speed is unit is electric field corresponding to force per unit charge. So force unit is Newton and charge unit is Coulomb. So Newton per Coulomb. Speed क्या आ जाए, ये unit क्या आ जाएगी यहाँ पर? मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड न्यूटन और कूलॉम ऊपर गया. पर अभी भी ये सॉल्व और हो सकती है. ठीक है, मीटर इंटू कूलॉम सेकेंड और न्यूटन के प्लेस पे क्या रखोगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला. एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए. सो न्यूटन इज कोरस्पॉन्डिंग टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें भी मीटर आ रहा है सो वी कैन कैंसिल आउट दीज टर्म्स. मे बी इट मे पॉसिबल हियर. सो फॉर मास इट इज किलोग्राम. इन प्लेस ऑफ न्यूटन आई एम रिप्लेसिंग द यूनिट हियर. In place of acceleration, meter per second square. So you can cancel the terms and you can get the unit of mobility, that is coulomb into second divided by kilogram. That is the unit of mobility. This is unit of mu. Got it? So unit of mu is coulomb into second per kilogram. Coulomb into second per kilogram. तो इस यूनिट से भी आपके कुछ टर्म्स निकल कर के आ रहे हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोबिलिटी किन टर्म्स पे डिपेंड करती होगी डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिस पर. कूलॉम दैट मीन्स व्हाट? मोर द चार्जेस मोर द मोबिलिटी. यू कैन सी हियर कूलॉम मीन्स व्हाट? इट इज corresponding टू चार्ज. सो मोर द चार्ज मोर द मोबिलिटी ऑब्वियसली. सेकेंड मीन्स फास्टर द स्पीड मीन्स टाइम इज मोर. Time is corresponding speed is you can say it as the time duration is more, then corresponding mobility is more. जितना ज़्यादा टाइम के लिए चार्जेस फ्लो करेंगे मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि चार्जेस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है. किलोग्राम डिवीज़न में है. दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि इट इज़ इन द रेसिप्रोकल रिलेशन विद द मोबिलिटी. सो डिनोमिनेटर में होने की वजह से किलोग्राम की कोरस्पॉन्डेंस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. मीन्स अगर चार्जेस हैवी मास नहीं हैं तो देन द मोबिलिटी इज़ हाई एंड इफ द चार्जेस आर हैवी मास बॉडी देन द मोबिलिटी इज़ लो. अब कंडक्टर के केस में द चार्जेस द फ्लोइंग चार्जेस आर ओनली इलेक्ट्रॉन. सो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन कैरीज द मास ऑफ 9.1 10 to the power -31. तो ये तो फिक्स हो गया. सो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर चार्ज के बेसिस पर जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा. सो इट डज नॉट मच मोर इफेक्ट द मोबिलिटी. But in the case of semiconductor, it affects the mobility. Okay. So here we are considering only the electron mass, electron charge, and time. So that is corresponding to the value. Charge here, Coulomb. Charge means what? Greater the charge, greater the number of particles, charge particles, greater the mobility. I hope this point is clear to you. So that is overall description about this mobility. I hope it is clear to you. Now come to next topic, that is Ohm's law. It is very much important topic. You know, थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है. जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था तो 10th क्लास में सिमिल एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा था और स्टेटमेंट के बाद ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनली स्टेटमेंट. तो वहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं थी. एंड नाउ हियर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज़ द +1 टॉपिक. Okay, on the basis of mechanics we will apply the equation of motion and then we will find out the overall formula, the detailed formula for Ohm's law. Okay, so that is why here there is somewhat change in syllabus and that is required here for class 12. So let's discuss this Ohm's law. Here this one is a conductor body AB
आप ऐसे ही बनाते हो कंडक्टर बॉडी को। ये इनको हम कहते हैं टर्मिनल और पोर्ट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो ये टर्मिनल पोर्ट भी कहलाता है। वन इज टर्मिनल एंड वन इज पोर्ट। तो टर्मिनल्स पोर्ट भी कहलाता है। पोर्ट जो होता है वो 2 वे भी हो सकता है, 3 वे भी हो सकता है। टर्मिनल केवल 2 साइडेड यानी कि 2 वे ही होता है, एक इधर एक इधर। 3 वे भी हो सकता है पोर्ट, ओके। 4 वे भी हो सकता है पोर्ट। सो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स, बट these are the similar terms, okay, got it? So here A and B are the conductor and these are the terminals. Now these are connected with a battery and a key, okay. Simple circuit, this is called simple circuit. Plus and minus, this one is electric field, key, and this is a device which is called conductor. This one is a conductor. कोई भी डिवाइस ऐसी प्रेजेंट नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता हो। 0 रेजिस्टेंस इज द आइडियल कंडीशन, ठीक है। हर एक डिवाइस एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है चार्ज के फ्लो पर। अब यहाँ पर चार्जेस किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, केवल मैं यहाँ लैटिस स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगी बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद द ड्रिफ्ट स्पीड। Okay, because the uniform electric field is applied here, so that is why we will get the uniform acceleration of electron. That means what? There is a constant speed which is known as steady current, corresponding to steady current. There must be a constant speed. अब आप फिर से मैंने आपको क्या बोला कि speed and steady current. तो current और speed का relation है I is equal to N E A V D. जहाँ स्पीड ग्रेटर होगी वहाँ करंट भी ग्रेटर हो जाएगी। सो दैट इज अ रिलेशन, दैट इज वाई स्पीड एंड करंट आर इंटरलिंक्ड। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड करंट, ओके। सो दीज आर इंटरलिंक्ड। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टर्म। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, लेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज e, let the total charge is q, that means number of electrons are n. Remember these terms. Electronic charge is e, that means charge on one electron. Total charge is q, that means number of electron. Here I am taking n. On the basis of formula, q is equal to n into e, okay. This is the mass of each electron, each and every electron, okay. So here these are the terms. Let the drift speed is vd, let the area of this conductor is a, cross sectional area, we are taking cross sectional area. क्रॉस सेक्शन कैसे बनता है, जस्ट लाइक द केस ऑफ केक एंड दैट पेस्ट्रीज। आपने पेस्ट्रीज को देखा है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर में कट होती हैं। तो केक में भी आप क्या करो कि पूरा केक अगर लिया तो उसको सिमिलर स्ट्रक्चर में कट करते जाओ, जस्ट लाइक द ब्रेड स्लाइसेस टू। तो उसको सिमिलर स्ट्रक्चर में अगर आप कट कर रहे हो, सो दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो एक ही जैसा एरिया आएगा उसका। जब आप कट करोगे पीसेस तो हर एक पीस का एरिया वैसा ही होगा जैसे कि पूरी बॉडी का एरिया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दिस वन, ये जो पूरा पीस है कंडक्टर पीस, इसका हमने एक अगर स्लाइस कट करेंगे तो दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हियर दिस ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेट एल इज़ द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। जब भी आप कोई डेरिवेशन स्टार्ट करते हो आपको उनके टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट यू आर फॉलोइंग। So this is L, and afterward we will take the condition what should be the acceleration. So here we know that electric field is E, okay. So under the condition of Coulomb's law, here the Coulomb's law is applicable because electric field is applied and charges are moving on the basis of electrical force. So here E is equal to F डिवाइडेड बाई स्मॉल ई। हर एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। सो दैट इज वाई दिस वन इज द फॉर्मूला। इट इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू E इंटू ई। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए मैंने वेक्टर साइन लगा दिया। अब इसके बाद देखो, ये तो आ गया आपका कूलॉम्स लॉ के बेसिस पे एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है।
सो यहाँ पर जब भी मास है और मास बॉडी मूव कर रही है तो उसके बेसिस पर हम एक्सीलरेशन मास बॉडी का निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये किसके बेसिस पर है? न्यूटन्स लॉ के बेसिस पर। सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू m इंटू ए। हियर F इज द मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई किया गया है दैट इज corresponding to the mechanical force over the electron, that is why these electrons are moving। जहाँ पे भी कोई बॉडी मूव करी वहाँ पे हमें मैकेनिक्स अप्लाई करनी है। so here F is equal to ma। so this one is equation number 2। you can take the two ways। first one कि under the condition of equilibrium the mechanical force and electrical force both should be equal। okay, ऐसा आपने केस एक यूनिट नंबर 1 में सॉल्व किया है। so F दोनों F इक्वल होने चाहिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। एक केस आप ये ले सकते हैं, या दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के थ्रू अप्लाई हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो अंदर जाकर के कहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है, किस फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द मैकेनिकल फोर्स। वो इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर के इलेक्ट्रॉन के मोशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। so that is why the electrical force is converted into mechanical force। okay, आपको पता ही है कि फोर्स कन्वर्टेबल होते हैं, ये आपने +1 में पढ़ा हुआ है। so that is why here we can write it as F is equal to, here we can equate it to equation 1 is equal to equation 2। तो क्या हो जाएगा? EE is equal to MA। it implies that A is equal to EE divided by M। This one is one relation which we have got here। okay, we will use this relation here। this is equation number 3। now I can rub this figure because now it is not required। okay, so A is equal to this value। now for each and every electron, first electron is moving initially। अगर हम ये कहें कि बैटरी हमने अप्लाई नहीं की है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या थी? u1, ठीक है, इनिशियल स्पीड। और जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी, बैटरी लगा दी है, तो उस समय स्पीड हो गई v1। एक एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए थे? कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर रखेंगे तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1। इज इट करेक्ट वन? ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रही है। इनिशियल स्पीड थी डिफ्यूजन करंट के कॉरस्पॉन्डेंस में, दिस स्पीड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफ्यूजन स्पीड एंड दिस स्पीड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ड्रिफ्ट स्पीड। जब बैटरी नहीं अप्लाई हुई तो डिफ्यूज़न है, यानी कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना होगा जिसमें आपको मैंने डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट बताया है। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई है देन डिफ्यूज़न करंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई देन ड्रिफ्ट करंट। सो this is drift current, this one is diffusion current, and we are connecting these two terms on the basis of equation of motion। this is the first equation। so v1 is equal to u1 plus a t1 for first electron। एक इलेक्ट्रॉन के ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर बॉडी के अंदर? n इलेक्ट्रॉन। so we can write n number of equation for these electron up to, ये 2 के लिए हो गया। अब vn के लिए लिख देते हैं un प्लस a t n। क्लियर है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्लियर? आर यू श्योर? सो दीज आर द ड्रिफ्ट स्पीड एंड डिफ्यूजन स्पीड रिलेशन। अब हम क्या करेंगे दैट वी आर गोइंग टू फाइंड दैट एवरेज स्पीड। तो एवरेज कैसे निकलता है? v एवरेज दैट इज इक्वल टू द ओवरऑल ड्रिफ्ट स्पीड। जो एवरेज स्पीड आ रही है वो क्यों आएगी वो मैं बता रही हूँ, बस अभी आपने ये टर्म लिखना है, नोट डाउन करना है। दैट शुड बी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाई n। करेक्ट? आपने एवरेज ऐसे ही निकालते हो, एडिशन ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। इसको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ दो, आप डायरेक्टली इसके बाद ही स्टेप कर रहे हो। तो u1 प्लस u2 हम इसमें फर्स्ट टर्म को एक साथ लिख ले रहे हैं और सेकेंड टर्म को एक साथ विद एडिशन साइन।
प्लस अप टू UN प्लस ये टर्म एक साथ हो गया, प्लस A कॉमन ले लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn divided by n. Got it? So this point is clear. This step is clear. Now VD. क्यों VD लिखा वो मैं आपको अभी बताऊंगी यहाँ पर क्यों VD आ रहा है. So this one is what? U1 plus U2 up to UN. इसका रिजल्ट क्या आएगा? डिवाइडेड बाई n कर रहे हैं अगर, U1 plus U2 up to UN डिवाइडेड बाई n. ये एवरेज डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन स्पीड है, नॉट द करंट. दिस इज एवरेज डिफ्यूजन स्पीड U1 plus U2 up to UN डिवाइडेड बाई n. तो क्या होना चाहिए? एवरेज डिफ्यूजन स्पीड है. उसके बाद प्लस A T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइडेड बाई n. ये एवरेज टाइम इंटरवल हो गया, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए हम एवरेज निकाल रहे हैं. तो एवरेज डिफ्यूजन करंट कितनी होनी चाहिए? अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक फ्रॉम माय लास्ट वीडियो, डिफ्यूजन करंट का एवरेज जो आता है दैट इज 0. ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं. डायरेक्शन देखेंगे तो नेट डायरेक्शन विल कम एज, नेट स्पीड विल कम एज 0. तो एवरेज स्पीड यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए 0 हो गई, प्लस A. और इस पूरे एवरेज टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. ओके, द एवरेज टाइम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन दैट कम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू रिलैक्सेशन टाइम. दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. इसको भी अभी मैं डिफाइन करूँगी कि रिलैक्सेशन टाइम फिजिकल इसका मीनिंग क्या है, बट अभी जो टाइम का एवरेज आ रहा है मैथमेटिकली इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. तो अब आपको समझ में आया कि मैंने एवरेज स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड क्यों लिख लिया? क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन तो 0 हो जा रहा है एवरेज में, तो ओवरऑल जो स्पीड बच रही है वो केवल ड्रिफ्ट के कोरस्पॉन्डेंस में बच रही है. तो इसलिए इस एवरेज स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड लिख सकते हैं. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. एंड नाउ वी विल अप्लाई दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन नंबर 3. VD is equal to A tau. So A is equal to VD over tau. Here we can write it A is equal to VD over tau. So we can place it as equation number 4 and we can equate equation number 3 and 4. So we will get the relation here. A is equal to VD over tau. This is equal to EE divided by M. So it implies that VD is equal to EE tau over M. ठीक है, this one is equation number 5. Okay, we have got the value of VD. अब ओम्स लॉ किसके बीच में था? आपको स्टेटमेंट पता है. एक्चुअली जब हम 10th में करते हैं तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और बाद में उसका फॉर्मूला लिखते हैं, बट 12th क्लास में पहले आप डेरिवेशन करोगे, उसका फॉर्मूला आएगा, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखते हो. तो अभी 10th को रिकॉल करो. तो 10th के अकॉर्डेंस में आपको पता है कि हम जो ओम्स लॉ है उसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में. तो यहाँ पे तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस टर्म भी नहीं है और करंट टर्म भी नहीं है, पर हम पढ़ चुके हैं पहले कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD. यहाँ पे N क्या था? नंबर डेंसिटी. इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो we will apply the value of VD from this relation directly because we have proved it earlier. Okay, so we can apply this value that VD is equal to I over NEA. So this one is the relation. We will put the value of VD here in equation number 5. But before this, we can also put the value of E in terms of V. Recall unit number 1 and 2. According to the relation between electric field and potential difference, the potential difference across the conductor body, जो फिगर मैंने ड्रॉ की थी, उसके AB पोर्शन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए?
वो लेंथ और ई के रिलेशन में आएगा। तो वो क्या होता है रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर जो विद माइनस साइन को हम यहाँ एक्सक्लूड कर रहे हैं। आप इसको बैलेंस कर सकते हो बट यहाँ पर माइनस साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पूरे लेंथ के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। सो दिस E इज इक्वल टू वी बाई एल। वी हियर इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ओके, PD हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं। सो वी कैन पुट दीज टू वैल्यूज फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशन इन इक्वेशन नंबर 5. सो VD is equal to I over NEA and here E tau over M as such in place of E V by L. ओके, अब हमारे पास V और I आ चुका है तो हम इनको एक साथ रख करके बाकी टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू L ओवर N, ये टर्म नीचे आ रहा है, E स्क्वायर टाउ A। सो दिस वन मल्टीप्लाइड बाई I। ओवरऑल रिलेशन ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, V इज इक्वल टू ML ओवर N स्क्वायर टाउ A इंटू I। गॉट इट। अब इस टर्म में देखो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के लिए आप ये देखो, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल नॉट चेंज। L is the length of conductor. Initially we have introduced the length of conductor, so it will not change throughout the experiment. N is the number density. Number density will not change inside a conductor body. E is electronic charge, a fixed term. Tau is relaxation time, a fixed term on the basis of material structure. A is cross-sectional area. It will be it has introduced earlier, so it will not be changed throughout the experiment. तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म हैं। ओके, तो ये कांस्टेंट टर्म होने की वजह से आप कह सकते हो कि इसके प्लेस पे अगर आप एक कांस्टेंट के यूज़ कर लो, वो कांस्टेंट अभी इंट्रोड्यूस होगा क्या होता है। सो इसको अगर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I। सो हियर यू विल राइट दिस वन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो इसलिए V क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू I। एंड नाउ वी हैव गॉट द ओम्स लॉ स्टेटमेंट। नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट दैट अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन the potential difference across a conductor body is directly proportional to current flowing through the conductor body. Okay, repeating it, under the same physical condition, ये जरा अंडरलाइन करने वाला 2-3 वर्ड है। under the same physical condition, this is the marked term. Okay, under the same physical condition the potential difference across a conductor body is directly proportional to current I. ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये स्टेटमेंट हो गया। आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखोगे इस प्रूफ को करने के बाद। यहाँ जो कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट K इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू ML ओवर N E स्क्वायर टाउ A। यू कैन लर्न दिस टर्म। मुझे तो इसी फॉर्म में लर्न हो चुका है क्योंकि मैंने इतना करवाया इस बच्चों को। ML ओवर NE स्क्वायर टाउ है, दिस इज नोन एज R। R इज व्हाट, ML ओवर NE स्क्वायर टाउ है, NE स्क्वायर टाउ है, ML ओवर NE स्क्वायर टाउ है। ओके, हियर यू कैन सी मैंने अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन स्टेटमेंट में क्यों यूज़ किया और क्यों यूज़ होता है, ये जॉर्ज साइमन ओम के स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये किया था। ऑब्वियसली हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ओम्स लॉ का। तो इस स्टेटमेंट में सेम फिजिकल कंडीशन इसलिए है कि अगेन आई एम गोइंग इन द क्लास 11th, आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की बेसिस पर L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, A इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा T एंड V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा T। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन 1:2:3 का आ जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन होता है जब भी टेम्परेचर राइज अप करता है तो लेंथ इंक्रीज होती है कंडक्टर बॉडी में। जब भी टेम्परेचर राइज अप होता है एरिया वाइज उसमें चेंज आते हैं
अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, हाई टेम्परेचर पे जाएंगे। तो ये सारा जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है उसके बेसिस पर ऐसा हो रहा है। तो फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग्स में हमारे पास 7 फिजिकल कंडीशंस हैं जो हम अप्लाई करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो वो जो फिजिकल कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, उनमें से कौन कौन सी हैं? वन इज़ प्रेशर। जब हम किसी वायर को, किसी कंडक्टर बॉडी को अगर स्ट्रेच करना चाहें तो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। सो वन इज़ द प्रेशर एंड वन इज़ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली और प्रेशर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर प्रेशर लग रहा है तब भी लेंथ वेरी कर सकती है और अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तब भी लेंथ वेरी कर सकती है। और कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर आप एक वायर ले लो उसको स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा स्ट्रेचिंग में। समझ सकते हो आप? कुछ नहीं तो आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो कि एक कैंडल ले लो। कैंडल इज़ नॉट अ कंडक्टर, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल। एक कैंडल लो तो कैंडल को अगर प्रेस करो तो क्या होगा? एक साइड से अगर मॉल्टन स्टेज में है तो प्रेस करने पर लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर एप्लीकेशन। तो ये सारा का सारा आपका रिलेटेड है थर्मल एक्सपेंशन से। तो इसीलिए कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि थर्मल कंडीशन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज लेंथ, एक ये टर्म लेंथ और ये एक दूसरा टर्म एरिया, ये दो टर्म वेरी कर जाएंगे, बाकी कोई टर्म वेरी नहीं करेगा। टाउ वेरी नहीं करेगा, ई वेरी नहीं, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये वेरी नहीं करता, एंड नंबर डेंसिटी वेरी नहीं करेगा। एक ही कंडक्टर में नंबर डेंसिटी कांस्टेंट होती है एंड इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी वेरी नहीं। टर्म है वो केवल कौन कौन से हैं? दैट आर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो फिजिकल कंडीशन चेंज होने पे वेरी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट में अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर। दीज आर द 2 इंट्रोडक्टरी टर्म फॉर द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। ओके, तो एल एंड ए के लिए हमें ये स्टेटमेंट यूज करेंगे एंड दिस वन इज द इंट्रोडक्टरी क्वांटिटी आर। आर इज नोन एज रेजिस्टेंस of the conductor body, okay, and R is equal to ml over n square tau। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कहीं भी आप जाओगे, किसी भी जगह पर जाओगे तो आपको टिकट लेना पड़ता है, ठीक है, टोकन लेना पड़ता है कहीं भी एंट्री लेने के लिए। सो दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोकन अमाउंट। रेजिस्टेंस इज द टोकन अमाउंट। गॉट इट? मतलब क्या है कि कंडक्टर बॉडी में चार्ज को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई, बैटरी ने चार्ज को फ्लो कराना शुरू कर दिया, लेकिन उस फ्लो के लिए ये जो कंडक्टर बॉडी एक टोकन मनी लेगा एंड दैट टोकन मनी इज व्हाट? रेजिस्टेंस। सो इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल फिजिकल लाइफ से आप इस फिज़िक्स को रिलेट कर सकते हो, को रिलेट करो तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन की कॉपी में वो लिख करके आओगे, बट हाँ, आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसे अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको यहाँ पे यूज़ करो। तो कहीं भी एंट्री के लिए आपको क्या चाहिए? टोकन चाहिए। आप किसी भी ज़ू में जाओ, कहीं मॉल में जाओ तो एक टोकन मनी लगती है, ठीक है। सो दैट टोकन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम फिजिकली डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड इन द पाथ ऑफ चार्ज फ्लो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आई एम रिपीटिंग इट, you can note down, okay, everything you cannot accept or you cannot grasp in written form or in ready-made form, okay, you have to do work over it. So you can note down this situation, that definition of resistance, physical definition of resistance, what we can say it as the obstruction created by a conductor body in the path of charge flow is called resistance of conductor। मैंने यहाँ पे कंडक्टर को स्पेसिफाई कर दिया। अगर नॉर्मल में कहेंगे तो हम मटेरियल को डिफाइन ही नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस जो नॉन कंडक्टर का होता है बहुत हाई होता है, आपको पता ही है 10 to the power 18-19 के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है, अलॉय में भी रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी रेजिस्टेंस होता है, कोई भी बॉडी हो उसमें अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू टोकन मनी। अब इसको और एलेबरेट करते हैं तो आपकी बॉडी की भी बात करते हैं। आपकी बॉडी फूड इनटेक करती है, फूड इनटेक जो कर रही है उसका कुछ पोर्शन एनर्जी फॉर्म में आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो वो जो पोर्शन है दैट इज़ द टोकन मनी फॉर बॉडी। तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में अगर फ्लो करेगी, अंदर जाएगी, तो उसके लिए उसको एक टोकन मनी देनी पड़ेगी, टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस, ओके। तो
या इसको आप रोड के भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर एक रोड है, क्राउडेड रोड है, और आपको उसमें मूव करना हो तो ऑब्वियसली उस क्राउडेड रोड में आप इजीली तो फ्लो नहीं कर पाओगे, आपके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, कोलाइजन्स आएंगे. तो दैट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द conductor body or any material over the charge flow. So that obstruction is called resistance, and this one is a mathematical expression. So here we can write it, we can introduce the resistance. This is the proof of Ohm's law. We can write resistance. Now we have introduced this term that resistance R is equal to ml over n e square tau a. यहाँ पर L और A ये दो ऐसे टर्म हैं जो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर. ठीक है, ये दोनों टर्म टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है या प्रेशर पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर पर भी नहीं डिपेंडेंट है. ये दीज आर द एटॉमिक टर्म्स, तो ये तो वेरी नहीं करेंगे. तो ये जो एटॉमिक टर्म है इसका भी एक इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ये सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं. जैसे कि कंडक्टर में अगर हम सिल्वर ले रहे हैं तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर हम कॉपर ले रहे हैं तो उसके लिए अलग रेजिस्टिविटी होगी, एल्यूमिनियम ले रहे हैं अलग रेजिस्टिविटी होगी. तो दैट मीन्स व्हाट, अगर हम नॉन कंडक्टर ले रहे हैं उसके लिए भी अलग रेजिस्टिविटी होगी. तो मीन्स व्हाट कि ये जो एटॉमिक टर्म है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी and this is the characteristic property. Of any material. ठीक है, जैसे मास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है जो इन टर्म्स पे डिपेंड कर रही है. सो रेजिस्टिविटी फार्मूला इज व्हाट, m over n e square tau. That is the formula for resistivity. And this one is the formula for resistance. So we can write it as R को अब हम कैसे लिख सकते हैं, R that is equal to rho L by A, because rho is resistivity and it is also called specific resistance. ठीक है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक टर्म है तो स्पेसिफिक हो जाता है टर्म ये. सो R इज इक्वल टू रो L बाई A. आपने ये फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा है. ठीक है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. अब ये रिलेशन आपका न्यूमेरिकल में बड़ा यूज़ होना है और इसके बहुत सारे केसेस हैं जो न्यूमेरिकल के टाइम पे मैं डिस्कस करूँगी. सो हियर R इज इक्वल टू L इज प्रोपोर्शनल टू L, दैट मीन्स लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा. एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा. अगेन द केस ऑफ क्राउडेड रोड, रोड जितनी ब्रॉड हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा हो, ऑब्वियसली आप इजीली मूव कर सकते हो उस रोड में क्राउडेड कंडीशन में भी. और लेंथ जितनी, यानी रोड की लेंथ जितनी ज़्यादा हो, ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, यानी उस समय इंटरेक्शन ऑफ द क्राउडेड रोड वो उतना ही ज़्यादा होगा जितनी लेंथी रोड होगी. सो दैट इज़ ओनली द केस कि आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहे हो. सो दीज आर द रिलेटिंग टर्म, डिपेंडिंग टर्म ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, सो आई होप रेजिस्टेंस टॉपिक इज क्लियर टू यू. एंड रेजिस्टिविटी, दैट रेजिस्टिविटी इज corresponding to specific resistance which is the characteristic property. Now we can write down the unit. So unit of R is equal to ohm and unit of resistivity that is equal to ohm into meter. आप यहाँ से निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट. तो दिस इज ओम, सो एरिया के रिस्पेक्ट में आ जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ के रिस्पेक्ट में मीटर. तो 1 मीटर कैन बी कैंसिल आउट. ओके, यहाँ पे आप देखो दिस वन इज ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट आप निकाल रहे हो, यूनिट ऑफ रो, और दिस वन इज मीटर एंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल यू गेट हियर, ohm into meter. So that is the unit of resistivity. So this is the unit of resistivity, ohm meter, and this is the unit of resistance, ohm. So ohm obviously जो फिजिक्स थे उन्होंने डिस्कवर किया तो ओम्स लॉ जिसे हम कहते हैं, so उनके बेसिस पर ये यूनिट नेम दिया गया है. So you can easily learn this name, ohm or ohm meter.
Okay, I hope these points are clear to you, resistance and resistivity. Now I told you in between the Ohm's law derivation that relaxation time, I will tell the physical definition of that. So relaxation time means क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ये कंडक्टर बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो इंटरेक्शन टाइम एक होता है। यहाँ पर देखो, जो जब एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है, मैंने आपको मैकेनिक्स में बताया था, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है, तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट मीन्स रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। तो द टाइम इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलाइजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज थोड़ा लेंथी में बना देती हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हुआ होगा और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होने के बाद ये थर्ड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होगा। तो इन दो इंटरेक्शन में के बीच में जो टाइम बचा, जो टाइम इसके पास था, वो था इसके पास रिलैक्स करने के लिए टाइम, दैट इज वाई द नेम इज गिवन एज रिलैक्सेशन टाइम। So the time for the second electron, I am saying, because I have made 3 electrons so that we can find the 2 collision of second electron. फर्स्ट के लिए तो एक ही कोलाइजन है, थर्ड के लिए भी एक ही कोलाइजन है, सेकेंड के लिए 2 कोलाइजन है, सेकेंड विद द फर्स्ट एंड सेकेंड विद द थर्ड। तो 2 कोलाइजन के बीच में जो टाइम होगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिलैक्सेशन टाइम। सो वी कैन डिफाइन इट एज रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल टू द टाइम in between the two consecutive collision is called relaxation time. So that is the definition of relaxation time, physical definition, physical meaning of relaxation time. Okay, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में कोलाइजन फास्ट हो जाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो टेम्परेचर और ये हो गया आपका कोलाइजन, ये मीन्स रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन या डिपेंडेंसी। तो आपके लिए ये सारे टर्म्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप बेसिकली ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आप इन टर्म्स को आपस में रिलेट कर पाओ। गॉट इट? सो रेजिस्टेंस आई टोल्ड यू, रेजिस्टिविटी आई टोल्ड यू, आई विल डिस्कस लेटर ऑन ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल टाइम व्हाट आर द केसेस ऑफ दीज, ओके। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज conductivity. But before this, yes, I want to draw a graph showing the relation between resistance and temperature, or resistivity and temperature. इन टर्म्स में देखिए मैंने 4 ग्राफ्स बनाए ऑन द सेम एक्स एंड वाई वैल्यूज। सो ये अगर मैं कंडक्टर के लिए बना रही हूँ, फर्स्ट वन इज फॉर कंडक्टर, सेकेंड इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट, third is for semiconductor and fourth is for alloy. तो ये 4 टाइप्स के मटेरियल ले लिए हैं और उनके बेसिस पर मैं ये ग्राफ बना रही हूँ। सो कंडक्टर के लिए क्या होता है, दैट ग्राफ इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस वे, हियर दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, थोड़ा सा स्लाइड सा फॉर्मूला ये होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी हियर इज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सो दैट रेजिस्टिविटी of conductor
इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद सम प्लस साइन, दैट मीन्स इनिशियल कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, ये इनिशियल रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है रो नॉट। उसके बाद ये टी पर डिपेंडेंसी है, अल्फा टर्म्स पे डिपेंडेंसी है, अल्फा इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, एंड दिस वन इज डेल्टा टी, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। दैट पर्टिकुलर टर्म इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ thermal conductivity, yeah, that is coefficient of thermal conductivity alpha, and this one is rho naught, which is the initial conductivity at zero temperature. Okay, now case of electrolyte, again this one is the case. Okay, next is semiconductor case is reciprocal of this one, conductor case. This one is rho is equal to rho naught 1 minus alpha delta T. This one is a relation between resistivity and temperature. And afterward alloy के लिए resistivity almost constant ही होती है, this one. So this one is alloy which is having the constant resistivity, इसलिए हम alloy को use करते हैं heating effect के लिए, उसका resistance high ही आता है, स्लाइड वेरिएशन होता है टेम्परेचर के बेसिस पर. सो दीज आर द 4 काइंड ऑफ ग्राफ फॉर that relating resistivity and temperature for different material. I hope this is clear to you. There may be some variation for different conditions, but the 4 graphs are on the basis of 4 different kind of materials. Conductivity represented by sigma. अब इसमें एक रिप्रेजेंटेशन कंडक्टिविटी का आपका वो भी था जिसमें आपने स्पेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया था. तो एक ही टर्म के कई सारे नोटेशंस फिजिकल मीनिंग होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस टॉपिक में बात कर रहे हो. ठीक है, सो हियर दिस सिग्मा इंडिकेटिंग द कंडक्टिविटी. सो व्हाट इज कंडक्टिविटी? डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, कंडक्टिविटी वर्ड इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो कंडक्टिविटी obviously conductivity is linked with the conduction of electron and resistivity is the obstruction over the electron. Okay, so that is why this conductivity is reciprocal of resistivity. Now unit, it is a scalar quantity, resistance is a scalar quantity. Okay, so unit of conductivity is reciprocal of unit of resistivity, ohm meter, 1 over ohm meter, ohm inverse meter inverse. In some reference book this unit is represented by like Mohini. Okay, but I will not suggest you to follow this one. Afterward this one is conductivity, it is reciprocal of resistivity. One more term is there, that is known as conductance. Okay, conductance is, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर देना हो तो आप इसे C से रिप्रेजेंट कर सकते हो कंडक्टेंस को. आप इसमें देखो तो कंडक्टेंस वर्ड जो है वो रेजिस्टेंस वर्ड से लिंक आ रहा है. सो कंडक्टेंस C इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी था, सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ये टर्म जनरली यूज़ नहीं होता है कंडक्टेंस, लेकिन हाँ कंडक्टिविटी टर्म आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी यूज़ होगा. So that is why this term is more important. It is only just for the information that conductance is reciprocal of resistance, and again it is a scalar quantity. Resistance and resistivity are also the scalar quantity, and unit of conductance is equal to the ohm inverse. Ohm is the unit. ये representation होता है ऐसा ohm का, this one. So ohm inverse, इसको आप written form में देखते हो तो OHM इन्वर्स. तो इसका इन्वर्स आप अल्फ़ाबेटिकली ऐसे कर देते हो. इसका रिवर्स करो तो M पहले आ गया, H नेक्स्ट आया, O नेक्स्ट आया, तो इट इज कॉल्ड मो. ठीक है, दैट इज मो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. लेकिन ये सारी टर्म्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपको बस केवल यूज़ ही कर दें. तो दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. इट इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल इन फर्दर topics. Okay, so conductivity is important term, you can note down this one. So I hope this particular term is clear. So we have now till this time we now know that mobility, then resistance and resistivity, and afterward conductivity. Okay, so we know these relations, and afterward we these terms, and now we will get the relations between these terms.
Second relation, that is relation between J. What is J? J is current density. Okay, that I have discussed in last video, and electric field. So we are going to find out the relation between the two. So you know, फर्स्ट वन, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बस केवल माइंड में क्या होना चाहिए, फॉर्मूला. अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या क्या है तो आप उसको आपस में रिलेट कर सकते हो, और बेसिक टर्म्स जो बेसिक फिजिकल मीनिंग है वो आप डेरिवेशन के थ्रू पढ़ चुके हो. सो J इज इक्वल टू होता है I बाई ए. आपको मैंने इसमें ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि I इज इक्वल टू J डॉट ए आता है. J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, area vector we are taking, so it is the dot product, means scalar product, and current is a scalar quantity here. So here J is equal to I by A. We are going to find this one. So by Ohm's law, J is equal to, in place of I we can write V by R into A. Now V divided by R is equal to what? Rho L by A. L by A, A ऊपर चला जाएगा, A and A will be cancelled out, and we will get it as V by L into 1 by rho. What do you mean by V by L? V by L is electric field. As we know that E is equal to potential gradient with minus sign. Minus sign को हम exclude कर देते हैं डेरिवेशन में यहाँ पर. So V by L is E by rho. So this one is the relation between current density and electric field and rho, and 1 over rho is equal to होता है sigma. Sigma is what? Conductivity, reciprocal of resistivity. So this is sigma E. So J is equal to sigma E. Sigma is a scalar quantity, E is vector quantity, and J is a vector quantity. So we have got this term, the relation between the two. अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाएं तो वो भी यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं कि J का एटॉमिक लेवल पे क्या रिलेशन है, not with the E, with the VD. So here J is equal to I by A, and I is equal to NEA VD divided by A. So A and A will be cancelled out, and we will get the term NEVD. Now all these terms are in the atomic level. N is the number density, E is electronic charge, and VD is drift velocity. So we can get the relation in the form of atomic level with the VD. And then we can introduce E term here. यहाँ पर E से भी रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा. NE VD के प्लेस पे आपने क्या रख दिया, जैसे दैट इज म्यू E. आपको पता ही है रिलेशन कि म्यू इज इक्वल टू होता है VD डिवाइडेड बाई E. तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू E, म्यू इंटू E. तो ये एटॉमिक लेवल पे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ रहा है एटॉमिक लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर N, E और म्यू ये सारे एटॉमिक टर्म हैं, तो ये टर्म्स भी आगे यूज़ हो सकते हैं. गॉट इट? तो आपके पास दो टाइप के रिलेशन आ गए हैं, जिसमें भी रिलेशन पूछा जा रहा है वो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे. ओके, इसी तरीके से आप कुछ और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, जैसे म्यू और सिग्मा के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हो. ठीक है, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को अगर इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों ही J के रिलेशन है, एन ई म्यू और यहाँ पे सिग्मा ई, तो इन दोनों को रिलेट कर दो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. J के जो ये दोनों रिलेशन है इनको इक्वेट करने पर आपका रिजल्ट आएगा एन ई म्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा ई. E और E कैंसिल हो जाएंगे, तो एटॉमिक लेवल पे जो रिलेशन आता है एन ई म्यू, दैट इज इक्वल टू सिग्मा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी. ओके, और ये रिलेशन आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स में यूज होगा. रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी. ठीक है, तो देखो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ऑब्वियसली कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा मोबिलिटी. सो दैट इज़ वाई दीज आर इंटररिलेटेड, और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो. ये रिलेशन आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अच्छे से यूज़ होना है न्यूमेरिकल टाइम पे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Okay, so you can find out the relation between different physical quantity. So that's all for today. I have covered all these 5 topics now. Okay, and in my next class I will come with the next further topic of the same unit, and I hope till that time you will revise the previous topic
and you will try to solve some numericals.